100 کرنے پر وکلا سراپا احتجاج۔ پنجاب بار کونسل کا آج صوبے بھر میں ہڑتال کا اعلان۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کے مطابق وکلا آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ کورٹ فیس بڑھانا مہنگائی میں پسے عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ سیمنٹ ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال 7ویں روز میں داخل۔ ہڑتال کے باعث سیمنٹ کی بوری کی قیمت میں اضافہ، کنسٹرکشن شعبے سے وابستہ لاکھوں لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ۔ عوام کے لیے بری خبر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کے بعد کرایوں کا بم گرا دیا گیا۔ ریلوے انتظامیہ نے کرائے بڑھا دیے۔ مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 1% اضافہ، نوٹیفیکیشن جاری، اطلاق آج سے ہوگا۔ ڈیزل مہنگا ہونے کے باوجود کرائے نہیں بڑھائے۔ صدر آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن ملک ندیم کا کہنا ہے کہ کرائے بڑھانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ حکومت عوام کو ریلیف دے، تکلیف نہ دے۔ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ 24 کو جو ہم نے ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، جس کے اندر ہیلتھ کیئر کمیشن کے ایکشنز تھے اور اس کے ساتھ ایڈیشنل بہت سارے ایشوز تھے وچ آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ۔ اس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ یہ دھرنا بھی ہوگا، اس کے ساتھ احتجاجی مارچ بھی ہوگا اور 24 تاریخ کی پریپریشنز کی خاطر پورے پنجاب سے تمام تنظیمیں لاہور کے اندر آئیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ ہم ایجیٹیٹ کریں گے، اس ایک عمل کے اگینسٹ بھی جو کہ آج حکومت نے یہ کیا ہے۔ پی ایم اے کا 24 جولائی سے دھرنے کا اعلان۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کے بورڈ آف کمشنر کو تحلیل کرنے کا اقدام غیر قانونی قرار۔ صدر پی ایم اے ڈاکٹر اشرف نظامی نے کہا کہ مریم نواز کے ہوتے ہوئے شب خون مارا گیا۔ ہیلتھ کیئر کمیشن 2010 میں ایکٹ کے تحت قائم ہوا۔ حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے بورڈ آف کمیشن کے 7 ممبران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ بی او سی کے کمشنرز کو صوبائی کابینہ کے فیصلے پر عہدوں سے ہٹایا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ممبران میں جسٹس ریٹائرڈ ایم بلال خان، ڈاکٹر طلت، ڈاکٹر ریاض، سمیع ابراہیم، ڈاکٹر شفیق پتافی، ڈاکٹر عظیم الدین اور حمیش خان شامل۔ پنجاب حکومت کا ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے احسن اقدام۔ پنجاب بھر کے اسپتالوں کے لیے نرسیں بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ مختلف سرکاری اسپتالوں کے لیے 3000 نرسیں بھرتی کی جائیں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ صحت میں کروڑوں روپے کی کرپشن میں ملوث 500 ملازمین کی شناخت مکمل۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ نام جلد سامنے لائیں گے۔ ہیلتھ سیکٹر میں اصلاحات کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ اجلاس میں صحت کی سہولتوں، پروگرامز اور ادویات کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا میو اسپتال اور لیڈی ایچسن اسپتال کا دورہ۔ آئی وارڈ اور آؤٹ ڈور بلاک کی ریویمپنگ کا جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ اسپتالوں کے ریویمپ ہونے والے شعبہ جات کو عوام کے لیے جلد کھول دیا جائے گا۔ صدر نون لیگ میاں نواز شریف کا احتجاجیوں سے رابطے کا فیصلہ۔ سرائے کے مطابق مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور نواز شریف، صدر آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین سمیت اتحادی رہنماؤں سے موجودہ صورتحال پر مشاورت کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائدین کا اہم اجلاس ہفتے کو لاہور میں طلب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سمیت صوبائی وزراء بھی شریک ہوں گے۔ مخصوص نشستیں ملنے پر قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کا کارڈ۔ پی ٹی آئی کو سیاسی بساط پر نئی صورتحال کا سامنا۔ قیادت کو منتخب ارکان پر دباؤ ڈال کر وفاداریاں تبدیل کرنے کا خوف۔ لاہور کے میاں اظہر اور سردار لطیف کھوسہ سمیت تمام ارکان کو کے پی کے منتقل کرنے کا فیصلہ۔ اہل خانہ کی منتقلی بھی زیر غور۔
अपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी। 6 निकाती एजेंडा भी रिक्वेजिशन पर तहरीर। बढ़ती महंगाई, बिजली की कीमत में बेतहाशा इजाफा ज़ेर बहस लाना एजेंडे में शामिल। पीपल्स पार्टी भी पीटीआई पर पाबंदी के लिए तजब्जुब का शिकार। मरकज और पंजाब के मुतादिद रहनुमाओं का पीटीआई पर पाबंदी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। सीनियर रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी की सीईसी मीटिंग में बात करने का फैसला। आर्टिकल 6 और ये जो चीज़ें हैं ना जी, ये इस मुल्क में बहुत दफ़ा देखी जा चुकी है और ये सियासी आप समझ लें कि ये उनके नारे एक सबसे जो पॉपुलर जमात है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसको दबाने के लिए आप खुद देख लें कि 2 करोड़ 60 लाख वोट हासिल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और हमारा ये भी फैसला हो रहा है और हम बड़ी जल्दी आपको ये भी बता दें कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी रेफरेंस में जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालिबा। कहा कि इस्तीफा ना दिया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। मुल्क में आर्टिकल 6 इससे पहले भी लग चुके हैं। जुल्म की रात खत्म होने वाली है। बानी पीटीआई को ज्यादा देर अंदर नहीं रखा जा सकता। महंगाई के खिलाफ जल्द सड़कों पर होंगे। पीपल्स पार्टी का पंजाब में पार्टी की अलसर 9 तंजीम साजी का फैसला। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओहदेदारों को फहरिस्त तलब कर ली। सदर लाहौर के लिए फैसल मीर, जुल्फ़िकार अली बदर और बैरिस्टर आमिर हसन के नाम ज़ेर गौर। सदर आसिफ अली जरदारी ओहदेदारों के नाम फाइनल करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स आम सारिफीन के लिए ना रहे। सब्सिडी खत्म होने पर यूटिलिटी स्टोर्स वीरान। सारिफीन ने रिलीफ न मिलने पर यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सारिफीन को ही सब्सिडी हासिल। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 रोज से चीनी की सप्लाई भी न हो सकी। पंजाब फूड अथॉरिटी का जालसाजों के खिलाफ ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीमों की सदर एरिया में फूड पॉइंट्स की चेकिंग। टोलिंटन मार्केट में नाकाबंदी। 2480 किलो मुज़र सेहत गोश्त तल्ख। 23 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 1,70,000 के जुर्माने। पंजाब हुकूमत को धचका। रोशन घराना मंसूबे को PND से मंजूरी ना मिल सकी। सोलर पैनल्स की तकसीम का हुकूमती मंसूबा ताखीर का शिकार। एनर्जी डिपार्टमेंट से मंसूबे के तहत अहल अफराद के इंतखाब से मुतालिक दोबारा तजावीज़ मांग ली गई। $15.5 लाख सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। तनख्वाह और पेंशन में एडहॉक रिलीफ के लिए AG ऑफिस ने काम शुरू कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अगस्त को मिलने वाली तनख्वाह और पेंशन में इजाफा शामिल कर दिया जाएगा। एडहॉक रिलीफ तवील छुट्टी पर जाने वालों को नहीं मिलेगा। पंजाब को 19 पब्लिक यूनिवर्सिटी में लाहौर हाईकोर्ट के जजेस सिंडिकेट मेंबर्स मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम जब्बार और पंजाब यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर बन गई। जस्टिस अली बाकिर नजफी को यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का सिंडिकेट मेंबर बना दिया गया। यूनिसेफ के ताउन से लर्निंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। व्हाट्सएप लर्निंग प्रोग्राम का आगाज लाहौर के 10 मुंतखब स्कूलों से किया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूलों से ख्वाहिशमंद असातिज़ा और वालिदैन के नामों की फहरिस्त मांग ली। गैर कानूनी शिकार और दरख्तों की कटाई करने वाले हो जाएं होशियार। महकमा वाइल्ड लाइफ का ट्रैप और सेंसर लगाने का फैसला। ट्रैप कैमरे की मदद से जानवरों की नकलो हरकत को रिकॉर्ड किया जाएगा। जानवरों का शिकार करने वालों की निशानदेही मुमकिन हो सकेगी। PHA का फन लैंड की तामीर का फैसला। ग्रेटर इकबाल पार्क और जेलानी बाग में फन लैंड बनाए जाएंगे। DG मोहम्मद ताहिर भट्टू ने फन लैंड्स बनाने के प्लान की मंजूरी दे दी। कहा कि फन लैंड्स बनाने का काम रमा साल ही शुरू कर दिया जाएगा। DG LDA ताहिर फारूक के ज़ेर सदारत इजलास। LDA सिटी में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। DG की LDA सिटी के मज़ीद 3 ब्लॉक्स को जल्द पोजीशन देने की हिदायत।
रेलवे कॉलोनीज कचरा कुंडी में तब्दील, जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर, वॉशिंग लाइन और डीएस ऑफिस के अतराफ में कूड़ा करकट न हटाया जा सका। गंदा पानी जमा होने से रिहायशी परेशान, डीएस रेलवे से नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब बार काउंसिल का बड़ा इक़दाम, क्यू सहूलत पर रजिस्ट्रेशन न कराने वाले वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल शुदा रजिस्ट्रेशन वाले वकला अदालतों में पेश हो सकेंगे, न ही इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। सूबा भर की बार एसोसिएशंस को वकला की लिस्टें भिजवा दी गईं। वज़ीर आला का आशूरा के इंतजामात और सिक्योरिटी पर इज़हार इत्मीनान। मरीम नवाज की इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों को शाबाश, कहा कि सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वज़रा काबिल तहसीन हैं। योम आशूरा पर सब ने मिलकर काम किया, अपनी टीम पर फ़ख्र है। मुहर्रमुल हराम के अय्याम में पूरे मुल्क के अंदर पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद हुआ और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने ना सिर्फ ये कि पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद करवाया, बल्कि पूरे मुल्क में अमन व अमान के हवाले से मुल्क के सलामती के इदारों, पाक फ़ौज और पुलिस के साथ हर जगह शाना बशाना खड़े होकर हर जगह अमन व अमान के लिए अपना किरदार अदा करके एक वाज़ेह पाकिस्तान में अपने किरदार और पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक के ऊपर अमल दरामद को पूरी कौम के सामने रखा है। मैं इस पर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख का, ज़ाकिरीन वाइज़ीन का, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बाकी जगहों के ऊपर इस्लामाबाद जो हमारे सलामती के इदारों ने, फ़ौज ने, पुलिस ने मेहनत की है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बिलाशुबा जो काम अमन व अमान के हवाले से सर अंजाम दिया जाना चाहिए था, उसको मुल्क में सर अंजाम दिया गया है। तमाम उलमाए इकराम का आशूरा मुहर्रम में मस्बत किरदार रहा। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारे और पाक फौज अमन व अमान बरकरार रखने पर तहसीन के मुस्तहिक हैं। मिसाक़ पाकिस्तान वक्त की ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम से ही दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सकता है। मुहर्रमुल हराम के दौरान ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजामात। एडिशनल आईजी ट्रैफिक के तमाम अफसरान और जवानों को शाबाश। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्ज़ा फारान बेग ने कहा कि 15,000 अफसरान और जवानों ने मुहर्रम में अपने फ़राइज़ से सर अंजाम दिए। जवान इसी जज्बे के तहत शहरियों की खिदमत जारी रखें। एक मेगा प्रोजेक्ट है जो अल्हम्दुलिल्लाह PITB, पंजाब सेफ सिटीज़ और हुकूमत पंजाब मिल के बना रही है और इसमें बिलियंस की सेविंग हो रही है क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारा अपना है। हम इंशाअल्लाह ताला इनविजिबल पुलिसिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए, सेफ सिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स के ज़रिए और होम ग्रोन सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपको महफूज बनाते रहेंगे। 2025 तक पंजाब का हर शहर सेफ सिटी बन जाएगा। IT पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में वीडियो पैगाम। कहा कि रमसाल 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। बागहात के शहर में मौसम के बदलते रंग। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से हब्स का जोर टूट गया। तेज़ हवा चलने से मौसम सुहाना, शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब हुकूमत आफात से निपटने के लिए कायम कमेटी में DG PDMA को शामिल करना भूल गई। काबीना कमेटी में DG PDMA और सैनिक स्टेक होल्डर्स को शामिल ही न किया जा सका। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने याद दिलाया तो DG पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कमेटी में शामिल किया गया। मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA का कहना है कि हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तमाम मशीनरी फ़ाल है। हालिया बारिशों से 30 कीमती जानों का ज़िया हुआ। हुकूमत की जानिब से 10 लाख फी खानदान माली इमदाद दी गई।
वज़ीर आला की हिदायत पर वाइस चेयरमैन वासा मुतहरिक चौधरी शहबाज अहमद ने जौहर टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा किया। तमाम फिल्टरेशन प्लांट्स की सफाई और देखभाल यकीनी बनाने की हिदायत। मजाक से शुरू होने वाली बात हाथापाई तक जा पहुंची। एयरपोर्ट पर पुलिस अफसरान गुत्थम गुत्था। पुलिस वफ़द के सरबराह ने अपने बैचमेट एसएसपी को गालियां दी और नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए। आईजी पंजाब ने लड़ाई झगड़े का नोटिस लेते हुए तमाम अफसरान को आज तलब कर लिया। सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन विंग का इजलास ज़ेर तफ्तीश मुकदमात पर पेशरफ का जायजा लिया। पेंडिंग रोड सर्टिफिकेट्स क्लियर न करने पर डीएसपी से डिफेंस और कहना की सरजनिश। बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि फ़राइज़ की अदायगी में अदम दिलचस्पी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। डॉल्फिन स्क्वाड का क्रिमिनल्स के खिलाफ शिकंजा सख्त। इस्लामपुरा डॉल्फिन का एक्शन, 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान में सफदर सियाम और हमजा शामिल। मुल्जिमान के कब्जे से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। मज़ीद तफ्तीश के लिए थाना इस्लामपुरा के हवाले। वन वे मोटरसाइकिल और कार चलाना कानूनन जुर्म। ट्रैफिक पुलिस हादसात के सद्देबाब और सफर को महफूज बनाने में पेश। वन वे की खिलाफ वर्जी पर कानून शिकनों के गिर्द घेरा तंग। रवा साल 24,585 वायलेटर्स को चालान टिकट जारी किए गए। जेल मुलाजमीन के माजूर बच्चों को स्कॉलरशिप देने की मंजूरी। महकमे जेल के अफसरान और एहलकारों के जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों को 72,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप मिलेगी। आईजी जेल मियां फारूक नजीर ने कहा कि स्कॉलरशिप के अहल उम्मीदवार अपने केस 14 अगस्त तक भिजवा दें। और अना मिनल हुसैन, हुसैनियों की आवाज़ दुनिया भर में पहुंचाने के लिए न्यू न्यूज़ लाया। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से खुसूसी ट्रांसमिशन। आज के मुनफरिद मुसाबके में चनियोट के सैयद कंबर जैदी और कोयटा के मोहम्मद मेहदी ने 30 में से 18 नंबर हासिल किए। जजेस ने दोनों उम्मीदवारों को अगले मरहले की नवीद सुना दी। देखते रहिए प्रोग्राम अना मिनल हुसैन।